हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 23। ये चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, डेवलपमेंट ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यानी देखा जाए तो भारत के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का विकास किस प्रकार हुआ है, इसके विषय में हम विस्तारपूर्वक यहाँ पर जो ज्योग्राफी के यानी भूगोल के चैप्टर में करेंगे। ये चैप्टर कई मायने में हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इवन कि जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next here, limestone here. The limestone, there is the most important here. Limestone is used in a wide range of industries. You know that limestone is used of wide range of industries. Is a 76% of the country as a total consumption is the use of cement industries. There is important 76% use of consumption of here cement industry, and 60% in the iron and steel industry, and 4% is the chemical industries. There is important here 60% iron steel industry and 4% is the chemical industry. The remaining 4% is used by the sugar, paper, fertilizer, and is a manganese industry. And limestone with a high silica container for the cement industry. That is the most important, and important also here distribution. The limestone distribution is the most important part here. The distribution here, Madhya Pradesh possesses of the 36% of the total reserve. You know that Madhya Pradesh is important here, a possesses of 36% of total reserves here. Other is a major producing state are Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Himachal Pradesh, Orissa, Bihar, Jharkhand, and Uttarakhand and Uttar Pradesh also. There is a most important here. There are producing state here: Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Karnataka, and Tamil Nadu, Maharashtra, Himachal Pradesh, Orissa, Bihar, Jharkhand, and Uttarakhand here, and Uttar Pradesh also. The remaining part of come from Assam, Haryana, and Jammu and Kashmir. Kerala and Madhyalaya is the Karnataka contribute about 10% of the total reserves here. They are found in the Vijayapura, is belong there as a Singora district in Andhra Pradesh. The deposit are found there Visakhapatnam, and Kuttum is a Krishna, is a Kari Nagara, and the Albibad district here. Sundarnagar district Odisha is the thus district of Bihar, and the Palamus districts of Jharkhand also have a limestone deposit here. The most important point arrive here in the box. There is an important notable. There is a note out of your notebooks. The India is a leading or producer in a mica. You know that India is a leading producer in a mica. Mica is a use of electrical and electronic industries. Mica is used in a electric and electronic industries here. Mica is a widely distributed but workable deposit occur in the state of Bihar, Andhra Pradesh, and Rajasthan here. The mica is widely distributed but a workable deposit occur in the state Bihar, Andhra Pradesh, and Rajasthan. Limestone is a mostly used of cement, iron, steel, and is a chemical industry. Limestone is the most important
for here. Limestone is mostly found in the Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, and Orissa, and Bihar, and Jharkhand, and Meghalaya. There is the most important here. उसके पश्चात आता है चूना पत्थर। देखिए चूना पत्थर लाइमस्टोन कितने महत्वपूर्ण है यहाँ पर। इस खनिज का उपयोग कई प्रकार के उद्योगों में होता है। यानी चूना पत्थर से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। यहाँ पर जो है घरों को सजाने से लेके जो है डॉक्टरों तक जो है चूना पत्थरों का यूज़ किया जाता है। यानी लाइमस्टोन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस खनिज का उपयोग कई प्रकार के उद्योगों में होता है। चाहे सीमेंट उद्योग जो है भारत के जो है 76% चूने पत्थर खपत का प्रमुख स्रोत है। यानी सीमेंट उद्योग सबसे अधिक जो है चूना पत्थर का खपत करता है। चूने का पत्थर की खपत लोह इस्पात उद्योग में जो है 16% और रासायनिक उद्योग में 4% होता ही होता है। और शेष रह गया 4%, तो इसका उपयोग उर्वरक, कागज, सकरा, फेरा मैंगनीज उद्योग में खपत की जाती है। तो आप समझ सकते हो कि चूना पत्थर का कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान है, कितना महत्व रखता है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष वितरण। देखिए वितरण भी अपने जगह पर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं मध्य प्रदेश में चूना पत्थर कुल भंडार का जो है 35% अंश पाया जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मध्य प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश में चूना पत्थर कुल भंडार का जो है 35% अंश पाया जाता है। कुल उत्पादक राज्य में जो है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो देखा जाए तो वितरण भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं मध्य प्रदेश में चूना पत्थर कुल भंडार का 35% अंश पाया जाता है। यानी मध्य प्रदेश चूना पत्थर के लिए एक वैकल्पिक स्रोत है। और उसके बाद जो है दूसरे बाद जो है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश है। शेष चूना पत्थर के भंडार का जो है अंश असम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरल और मेघालय राज्य से आते हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कर्नाटक में कुल भंडार का जो है 10% उत्पादन होता है। यानी कर्नाटक भी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है यहाँ पर चूना पत्थर के निर्माण के लिए। और इस खनिज के निक्षेपण में कर्नाटक में बीजापुर, बेलगामा और शिवमोगा जिले में मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में इसके निक्षेपण जो है विशाखापट्टनम है, गुंटूर, कृष्णा, करीमनगर और अलीदाबाद जो है जिले में मिलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है। कहते हैं उड़ीसा के जो सुंदरगढ़ जिले और बिहार के रोहतास जिले तथा झारखंड के जो है पालूम जिले में भी चूने पत्थर का भंडार बहुत ही मात्रा में पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट कि देखिए ये काफ़ी ज़रूरी भी है, जिसके बारे में आपको जो है लिखना चाहिए, अपने कॉपी पर नोट डाउन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी के चैप्टर पढ़ते हो तो सब चीज़ों को जो है अच्छे से नोट करना ही ज़रूरी है। क्योंकि ये सारे तत्व के बारे में इससे अच्छा जो है नोट्स आपको कहीं मिल नहीं सकता। तो इसको आप अपने कॉपी पे ज़रूर नोट कर लीजिए। देखिए इसके अंतर्गत जो यही है इस बॉक्स में कि भारत संसार का अग्रणीय अभ्रक उत्पादक देश माना जाता है। यानी भारत जो है संसार का अग्रणीय अभ्रक उत्पादक देश माना जाता है और भारत के अलावा कोई और देश जो है इससे अधिक उत्पादन नहीं करता है। अभ्रक का उपयोग जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में बेखूबी की जाती है। यानी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जितने भी उद्योग में है उनमें अभ्रक का जो है बेखूबी उपयोग किया जाता है और बहुत ही इसका उपयोग भी मायने रखता है। कहते हैं अभ्रक यानी माइका जो है अभी पूरे देश में वितरित होती है, किंतु निर्यात के लिए उपयोगी जो है निक्षेपण बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा जो है राजस्थान में मिलते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि बिहार और झारखंड जो है माइका का सबसे इम्पोर्टेंट जो है उत्पादन करता है। उसके पश्चात अगर हम चूना पत्थर सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में मिलते हैं। चूना पत्थर की अगर हम बात करें तो चूना पत्थर सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में मिलते हैं और इसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड तथा मेघालय में इसका स्थान आता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है अपने जगह पर स्थान। ठीक है, कहते हैं दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक समस्याएं हैं कि इनकी समस्याएं किस प्रकार जो है सुलझाया जा सकता है। Next here, problems. Problems. Where is this problem here? The problem is the phase here. The mineral extraction is only important. The various a problem posed by the mineral extraction here. The major problem are flowing here. First of all here, depletion of mineral. There is a depletion of mineral here. There is a most important due to escapes of pollutations of many minerals are going to be depleted in a near future.
there is important air, there is an air of future, so it's called a conservation and judicious of utilization of mineral here. There is a most important point. The next here is important ecological problems here. The ecological problem here, mineral extractions has a lead to be serious environment problem. You know that there is important here. The mineral extract is here a serious environment problem here. Rapidly growing of mining of activity has already rendered a large agriculture tract almost useless. There is important the large agricultural tract almost useless. Natural vegetation has been removed from vast tracts here. Such areas suffer from frequent floods and for a want to proper drainage. They have become a breeding ground for a mosquito spreading a malaria with the vengeance. And in the hill of mining areas, a landslide are a common phenomenon taking a toll of life and cattle and property. There is a most important point here. In a hill mining area, a landslide are a common phenomenon taking toll of life, cattle, and properties. In many of mines, miners have to work under most of hardest condition here. Hundred of leaves are most each year by fire in a coal mine and due to the corrosional flooding etc. here. An occurrence of poisonous gas is a pocket of mine is a great enemy of miner here. There is the most important ecological problem for the minerals here. The next here, pollution. Pollution also is the major problem for a section of their minerals here. Many mineral produce area lead to be air and water pollution in the surrounding region, which is a turn lead to various health hazards here. The next is social problem. The new discoveries of minerals often lead to a displacement of people. And as a many travels area is rich in minerals, the travel peoples are most affected here. Industrialization of such as area had a badly started. There is economical value and lifestyle here. There is a very dangerous here social problems created by the minerals or new discovery of minerals here people. यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आया है कि जो मिनरल हम धरती से निकालते हैं, ठीक है, कहते हैं कोई भी मिनरल अगर पृथ्वी से निकाला जाता है तो उसका वो वास्तविक फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि कोई भी जो है वो अनप्योरिटी फॉर्म में ही जो है अर्थ के कोस्ट में रहता है। तो ये सारी समस्या यहाँ उत्पन्न होती है कि जब मिनरल हम जो है अर्थ से निकालते हैं तो कौन कौन सी समस्या आती है जो कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इन्हीं समस्याओं पर जो है हम अब चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा करेंगे कि जब हम खनिज जो उद्यानों में जब खनिज निकालते हैं तो कौन कौन सी समस्या आती है। आपको पता है कि कोई भी खनिज जो होता है वो शुद्ध फॉर्म में जो है हमारे भूपट्टी पे नहीं मिलता, और जब ये भूपट्टी से बाहर निकलती है तो इसको जो है प्योर फॉर्म में करना पड़ता है, क्योंकि जो फॉर्म जो निकलता है उस फॉर्म में उसका उपयोग करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो इसलिए समस्याएं बहुत खड़ी आती है। और देखिए समस्या इसके साथ जो है इन्वायरमेंट प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये समस्याओं के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब मिनरल निकाली जाती है तो कौन कौन समस्या आती है। कहते हैं खनिज उदाहरण से कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, इनमें से प्रमुख समस्या कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर जो है हमारे समक्ष खनिज की तीव्रता से समापन। तो पहली समस्या तो यही आता है कि खनिज की तीव्रता से समापन। देखिए कहा जाता है कि खनिज का जो है जितना निकालने में समय लगता है उतना ही जो है खपत होने में बहुत ही कम समय लगता है। तो ये जो है समापन की बात की गई तो बहुत महत्वपूर्ण है कि खनिज के जो है अनियंत्रित दोहन से बहुत से महत्वपूर्ण खनिज पुण्य समाप्ति के करीब पहुंचने वाले हैं। अतः इसके संरक्षण एवं न्याय संगत एवं विवेकपूर्ण उपयोग की अत्यंत आवश्यकता है। तो आप समझ सकते हो कि खनिज की तीव्रता से समापन होने की यहाँ पर समस्या बहुत बनी रहती है, क्योंकि जितने ही तेज़ी से ये निकलती है उतने ही तेज़ी से जो है ये समाप्त हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है खनिज के अंतर्गत। उसके पश्चात इम्पोर्टेंट बात आता है पारिस्थितिकी समस्या। देखिए इकोलॉजिकल समस्या भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आपको पता ही होगा कि भारत के जो है अगर हम पर्यावरण की बात करें तो एक जैसा नहीं है। यहाँ पर जो है
इकोलॉजिकल समस्याएं बनी रहती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है मिनरल्स के लिए, यानी जो हम मिनरल्स निकालते हैं उनमें बहुत बड़ी समस्या इन्हीं का रहता है। तो इकोलॉजिकल असमानता होने के कारण जो है पारिस्थितिक समस्या काफ़ी उत्पन्न करती है। खनिज के उदाहरणों में कई गंभीर पर्यावरण समस्या प्रस्तुत किया है। सबसे प्रमुख समस्या कृषि भूमि के काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्र जो है खनन प्रक्रिया से प्रभावित होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये सबसे प्रमुख समस्या कृषि भूमि के काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्र जो है खनन क्रियाओं से काफ़ी प्रभावित होता था। तो कुछ जो है भूमि पर जो है खनन से निकाले अनुपयोगी पत्थरों को जो है अभी अधिभार स्वरूप फैला देने में पूर्णतः उत्कृष्ट एवं अनुपयुक्त हो गए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो खनन करके निकाली जाती है उन पत्थरों का जो है बहुत तरह से उपयोग भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त खदानों में जो है कार्य आरंभ करने से पूर्व ही जो अधोसंरचना बनाने में प्राकृतिक वनस्पति संपदा का विनाश आता है। आपको पता ही होगा कि जो खदानों में हम जो है मिनरल्स निकालने के लिए जो संरचना तैयार करते हैं उसे आसपास के पर्यावरण को जो है बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिलता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी समझ सकते हो कि जहाँ पर से हम कोई खदान खोदते हैं तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे भी जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। तो इससे प्राकृतिक वनस्पति संपदाओं का विनाश होना स्वाभाविक बात बन जाता है। इससे उत्पन्न कई समस्या जैसे बार प्रभावित होना, इससे समस्याएं उत्पन्न होती है दोस्तों कि बार प्रभावित होना, आबाद क्षेत्रों में अवरोध उत्पन्न होने से पानी इधर उधर जमा मच्छरों का जो है आश्रय स्थापित बन जाती है। तो ये भी काफ़ी बड़ी समस्या करती है, जिससे मलेरिया होने से पानी का जो है इधर उधर जमा मच्छरों का आश्रय स्थान बनते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस कारणों से कितनी बड़ी जो है समस्या उत्पन्न करी जाती है, क्योंकि खदानें खोदी तो जाती है बट वहाँ पर जब पानी भर जाती है, बाढ़ आती है, तो वहाँ पर जो है मच्छरों को जो है पनपने के लिए एक आदर्श माहौल बन जाता है। और यहाँ पर जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है मच्छर जो है अपना जो है लार्वा दे देते हैं, जो काफ़ी यहाँ पर मच्छर पनपने के लिए जो है आदर्श जो है कंडीशन बना देते हैं, जिससे जो है मलेरिया होना स्वाभाविक बात होता है। जैसे मलेरिया जैसे संक्रमण बीमारी जो है फैलने की जो है प्रबल संभावना बनी रहती है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो है इससे बहुत ही जो है बीमारी फैलने की संभावना बनी रहती है। कहते हैं अगर हम देखें पहाड़ी क्षेत्रों में खनन कार्य से जो है भू संकलन बार होता है, जिससे जीव जंतु, पशु संपदा और मानव की जान माल की बहुत काफ़ी हानि होती है। देखिए अगर पहाड़ी क्षेत्रों पे अगर कोई खदान मिला है, कोई कुछ मिनरल्स के सोर्स मिले हैं, तो वहाँ पर पहाड़ियों काट के जो है उसको निकालना पड़ता है। और पहाड़ी को काटने के कारण क्या होता है, कभी कभी भू संकलन भी बार आता है, जिससे जीव जंतु और पशु संपदा और मानव जान हानि जो है जान माल की बहुत ही क्षति उठानी पड़ती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं पहाड़ों में खदान खोदना और इस तरह की समस्या आना एक आम बात रहती है। कई खदानों में खनन श्रमिक को बहुत ही खतरनाक माहौल में काम भी करना पड़ता है। आए दिन आप टीवी में न्यूज़ में देखते ही होंगे, कई जो है श्रमिक जो है खदानों में फंस गए हैं और अपने जान भी गंवा दिए हैं। तो ऐसी होना एक स्वाभाविक बात रहता है। कोयले खदानों में जो है आग लगने अथवा पानी भर जाने से सैकड़ों श्रमिक की जान गंवानी पड़ती है। तो ये तो है जनरल सी बात कि कोयले खदानों में आग लगने से, पानी भर जाने से सैकड़ों श्रमिक को जो है जान गंवानी पड़ जाती है हर साल, और ये ऐसा होता भी है और जनरल बात है। कई खदानों में कभी कभी विषैली गैस अचानक मिल जाने से कई श्रमिक मर जाती है। तो कहते हैं खदान में क्या चीज़ आगे है इसके बारे में किसी को कोई जो है पता नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, और इससे जो है जान माल की काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है मिनरल निकालने में समस्या आती ही आती है। उसके पश्चात है प्रदूषण। देखिए कहते हैं जब हम मिनरल के खदानों खनन करते हैं तो प्रदूषण होना एक स्वाभाविक बात रहता है। बहुत से खनिज उत्पादन क्षेत्रों को जो है गतिविधियों से जल तथा वायु का प्रदूषण आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी जो है आपदाएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जनरल बात है कि प्रदूषण के कारण जो होती है बहुत से खनिज उत्पादक क्षेत्रों की गतिविधियाँ जलवायु प्रदूषित होना एक स्वाभाविक बन जाता है। उसके पश्चात आता है सामाजिक समस्याएं। देखिए सामाजिक समस्याएं भी जो है उत्पन्न खड़ी कर देती है जब हम कोई मिनरल को जो है धरती से निकालते हैं। खनिजों की नई नई खोजों से स्थानीय लोगों का जो है विस्थापन होता है, यानी कई क्षेत्रों में खनिजों की जब खोजे जाते हैं तो लोगों का विस्थापन भी देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत से जो है जनजातीय क्षेत्र में खनिज प्रचुरता से पाई जाती है। जहाँ पर जनजाति रहते हैं
वहाँ पर जो है प्रचुर मात्रा में खनिज भी पाई जाती है। अंततः उनके विकास एवं दोहन होने पर सर्वाधिक प्रभाव जनजातियों पर ही देखने को मिला है। यानी जो व्यक्ति जो है जंगलों में रहते हैं और वहाँ पर खनिज अगर पाया जाता है तो उनके रहन सहन पे जो है बहुत ही बुरा प्रभाव देखा जा सकता है। इस क्षेत्र के औद्योगिकरण ने इन जनजातियों की आर्थिक स्थिति और इसके जीवन मूल्य में जो है जीवन यापन करने में तौर तरीकों पर काफ़ी जो है प्रभावित किया है और काफ़ी बुरा असर देखने को मिला है। कहते हैं आधे से अधिक जनजाति जो है इसलिए अब जंगलों में निवास करना नहीं चाहती है, क्योंकि वहाँ पर सरकार जो है आए दिन खनन करके उनके जीवन को जो है काफ़ी प्रभावित करती है। जिस माहौल में वो रहना चाहते हैं वो माहौल जो है भंग करते हैं। तो ये सारे कब ये समस्या उत्पन्न होती है, जब बड़े बड़े खदान बनाई जाती है, बड़े बड़े खदान खोदी जाती है, तो ये जो है बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर दिया है जो कहते हैं जनजाति है जो जंगलों में रहती है उनके लिए। तो ये सारी विषम परिस्थिति जो उत्पन्न होती है सिर्फ खनन जो है कहते हैं मिनरल्स खोदने के लिए, तो ये सारी समस्या काफ़ी महत्वपूर्ण है जिस पे सरकार को गौर करनी चाहिए और कहना चाहिए जो हो सके जितना हो सके इन प्राकृतिक को अधिक छेड़छाड़ ना करके जो है अपना कार्य जो है सुचारू रूप से करने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहें। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो तो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगर वीडियो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। देखिए दोस्तों, बात इतना सा रहता है कि अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, अच्छा लगता है, तो कहते हैं कमेंट भी करना ज़रूरी होता है। कहते हैं देखिए दोस्तों, आपको यूट्यूब पे जो है चैनलों की भरमार है, कहते हैं समझाने वाले कमी नहीं है, लेकिन कहते हैं समझ ऐसी हो जो सही हो। कहते हैं समझाना, देखिए अगर आप स्कूल में भी जाइएगा तो वहाँ पर भी जो है टीचर किताब को देख के ही समझाते हैं। ठीक है, और आप सोचिएगा कि यहाँ पर जो है बिना देखे समझाया, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो बिना देखे ही आपको समझाए, बिना पढ़े ही। बड़े बड़े टीचर भी जो है पहले ही होमवर्क करके जाते हैं और वही बात को वहाँ दोहराते हैं। लेकिन यहाँ पर त्रिपाण सेंटर आपके समक्ष ही वो जो शब्द है उसको प्रस्तुत करता है और उसी शब्दों के रिगार्डिंग जो है आपको समझाया जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करना है, जिससे दूसरे बच्चे भी इस जो है गुण को लाभ उठा सके। ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि बाद में कोई अगर टॉपिक रिसर्च कीजिएगा तो दूर दूर तक आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर नज़र नहीं आएगा। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर जो है आपको हर क्लास के रिगार्डिंग सिलेबस के अंतर्गत, ठीक है, चैप्टर के अंतर्गत सभी सिलेबस जो है आपको प्ले लिस्ट पर मिल जाएगी और आप सही फ़ायदा उठा सकती हो। ठीक है, कोई डाउट है, कोई आपको कोई इंक्वायरी करना है, कुछ भी जानना है तो कॉमेंट अवश्य करें।